Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and let me ask you a question. Who is the greatest Indian sports person ever? I don't want to argue and you can't fight with Sachin Tendulkar, his reputation and his supporters, or the great Dhyan Chand and his reputation and his supporters. But here is somebody a little bit forgotten in India, sadly, who's been acknowledged by International Olympic Committee. In fact, he's been listed among the 16 greatest icons in the Olympic Games in 100 years across all disciplines. He's an Indian. His name is Mr. Balbir Singh, and he's won 3 Olympic gold medals. Thank you, sir. Sir Balbir Singh, how wonderful too. Thank you, sir. Thank you very Welcome much. to Walk the Talk. You are giving me a new life. Arey, sir, you've given so much joy and so much Thank you, sir. skill to so many Indians. Thank you, sir. And sir, 3 gold medals, 48, 52, 56, and a world record that has never been broken. Of True, sir. largest number of goals in a final, 52 at Helsinki. True, sir. Thanks to the tricolor. Thanks to the tricolor. Tricolor. I played for my country. I played for that flag. When we won, I said, well, the national flag fluttered just like this, Just like this. and national anthem being sung. There was something really special to be experienced, Right, not to be seen or told, right. to be experienced. One should be there to see that your team has come, won, your national flag is going up in the sky, Right. and the national anthem is being sung. Something really sweet. And Balbir sir, 3 gold medals, yes, और एक वर्ल्ड कप भी आपके नाम है 1975 का. You were the manager of the Indian team that Chief coach and manager. chief coach and manager, the only team that won the World Cup, Correct, sir. 1975. Correct. And once again the same feeling, the flag going Same up feeling. and the flag national going anthem. up. And when this time I entered that stadium, they asked me the same thing. That Bengali boy, he was there, East and West, हाँ जी, senior editor of that East and West. हाँ जी. And I told him that same thing. National anthem and national flag, they instill that spirit in you. Right. You must win for the country, for that flag. Sir, in fact, I saw you after a long time we met. I knew you in Chandigarh when I used to be here. That was more than 3 decades back. True, sir. And we were all fans of yours. But I saw you last year when India played the qualifiers final against Qualifiers. France. And I could see that you were the most animated person in the audience. At the time, when you know your team wins, Right. anybody playing there under the name of India, when an Indian team goes to Vancouver, because Right. when I'm there with my sons, I'm always for the Indian team. Those Canadians, they're Vancouver people, they ask me, where you are, I said, Balbir Singh, anywhere, anywhere, but Indian hockey first. Indian hockey has given me this name and fame. India has given me this name and fame. I am always for India. I'll die back as Indian. It's my will, sir. Sir, you are the fittest person in his 90th year. Thank you, sir, all because of well-wishers like you. And I know that you sleep with a hockey stick by your side. I saw it like do, sir. by your bedside. It is always there. Because whatever I am today, Indian hockey, that hockey stick and our national flag, that is this symbol of our sovereignty. Sovereignty. So, sir, you were the one of the greatest centre forwards in the history of the game. And I believe you did not start as a forward. You have said I am greatest, well, that is history. I am one of the ordinary players, sir. And You started in the goal I started as a goalkeeper. As a goalkeeper. in Lahore, As a goalkeeper, Moga. Moga. Moga, my father was a hostel warden there, and our house we rented was just like this is hockey ground, and 3-4 yards on the other side was our house we rented. Sitting in front of the front door, I used to watch the hockey team being played there. And right from then,
I started as a goalkeeper, then I became a fullback. Then for the first time, a cousin of mine who used to stay with us, one day he was playing a local tournament. Two senior fullbacks had come. So he said, from today you are forward. I said, forward? Where should I play? Center forward. And that was the last day I came back. Always center forward. Center forward. Thanks to Indian flag, thanks to India. Always center forward and center forward. Word says number one. I was one of the ordinary players. And I believe आपकी एक जुगलबंदी होती थी with your inside right. Inside right, yes sir. Right. I used to give a pass. हाँ जी. Moving like this way. हाँ जी. Give a pass, go forward. If the right hand gives me back in D, well, shoot. Inside right जिसको हम common language में right in बोल देते हैं कई बार. Right in बोलते हैं. Wrongly but inside right. left और आपका कौन favorite था जी 48 में बताएं? 48 में तो मेरे बाबू थे. बाबू राइट हैंड मेरे साथ थे. और उसके पहले 52 में मेरे कैप्टन भी थे. हाँ जी. तो उससे पहले सबसे पहले मुझे ज़्यादा सिखाने वाले मकबूल हशमत. खालसा कॉलेज में मकबूल हशमत. और हम दोनों ने सेंटर से बॉल लेके मैंने उनको देना, उन्होंने मुझे दे. एक इधर लिया, उधर जो रेडी ग्राउंड है बजरी की. हाँ जी. बजरी ग्राउंड पे ग्रेवल कहते हैं जिसको. ग्रेवल ग्राउंड. हाँ जी. ग्वालियर में, भोपाल में जब खेलते थे तो उस पर खेलना बड़ा मुश्किल लगता है. पाँव स्लिप करते हैं तो उस पर कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल होता है. अपने आप को भी कंट्रोल रखना और अपोनेंट को बीट भी करना बड़ी मुश्किल होती है. कई बार जो फाउल खेलते हैं, दुर्गा प्रसाद एक होते थे, अगर उनको बीट करके जाओ वो पीछे से टिप्पी मार देते थे. अच्छा. पहली बार जब ग्वालियर में खेलने गया तो मेरे सब ये चल गए घुटने, लेकिन हम जीत गए. महाराजा ग्वालियर आते थे, हमारा मैच देखते थे और हम बच्चों को बाद में अपने पैलेस में ले जाते थे खाना खिलाने के लिए. Sir, can I borrow your stick and feel honored? Please. I'll say I held the same stick as Sardar Balbir Singh. In fact, sir, we had so many Balbir Singhs who played for India that we had to label them. So Balbir Singh Sr, Balbir Services, Balbir Police, Balbir Railways. But there are four. So people always got confused. Okay, this is not Datta Singh and Prem Singh, this is Balbir Singh and Balbir Singh and Balbir Singh and Balbir Singh. In one of the Asian Games, I think, they were playing three together. Right half and right in and right out. Balbir Singh. तो सर वो गेम बताइए जब आपने 5 गोल किए फाइनल के अंदर, जो अभी गिनेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. बिल्कुल है. और फ्रैंकली अगर ओलंपिक्स में वो टीम स्पोर्ट है इसलिए नहीं करते, लेकिन ये बॉब मीबन तो 1968 है, ये तो 1952 से रिकॉर्ड नहीं टूटा है. 52 से अभी तक नहीं टूटा है, किसी ने 5 गोल नहीं किए हैं. अभी तक चल रहा है सर. और लगता भी नहीं कोई आराम से करेगा. लोगों का इंप्रेशन यही है कि ये शायद ना टूटे. पर मैं विश करता हूँ कि इंडियन टीम खेले किसी रोज़ और इंडियन टीम वाले मेरा रिकॉर्ड तोड़े तो मज़ा आ जाए. हाँ, वो तो मज़ा आ जाए. वो तो मैंने आपको देख लिया लास्ट ईयर सर, वो फ्रांस वाले मैच में देख लिया. यू वर लाइक ए टीनेजर. जब टीम जीतती है ना इंडिया की. हाँ जी. मैं ज़्यादा बच्चों के पास रहता हूँ ना वैनकूवर में, तो इंडिया की टीम जाती है तो वो जीतते तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मेरी टीम जीतती. पर आपकी तो इंटरनेशनल फैमिली है. बिल्कुल मेरी फैमिली इंटरनेशनल. आपकी एक डॉक्टर इन लॉ हांगकांग चाइनीज है, एक चाइनीज है, एक सिंगापुरियन है, एक यूक्रेनियन है. बिल्कुल इंटरनेशनल सर फैमिली है. हाँ जी. लेकिन आप बिल्कुल इंडियन. दिल है वो लाल टोपी रूसी, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी. बिल्कुल दिल हिंदुस्तानी. कभी नहीं बदला. तब बताइए सर वो मैच बताए फाइनल जब आपने 5 गोल किए, क्योंकि कभी भी 5 गोल करना फाइनल में वो भी इतनी टेंशन होती है. उस वक़्त जोश ऐसा था कि टीम कि जोश से खेलो तो जोश इतना आना कि टीम के लिए जिधर से भी आए ज़ोर से खेलो. डी में आ जाए बॉल तो मेरी प्रैक्टिस ही होती थी, क्योंकि मैं टेनिस बॉल से बहुत प्रैक्टिस करता था. पहले हमारे घर में जहाँ था ना 2 दीवारें थी ऐसे, तो इधर मारनी टेनिस बॉल कितनी तेज़ आती है, आती को इधर मारना, उधर से इधर मारना. उससे मेरी जजमेंट ऐसी बन गई कि आंखें बंद करके मारो ना बॉल पे. लेकिन सर बलबीर सर आपने देखा है आजकल लोग डी में जैसे बॉल जाती है
वो गोल की बजाय पहले किसी के पाँव में मारते हैं कि कैरिड हो तो पेनल्टी कॉर्नर मिल जाए। वो पेनल्टी कॉर्नर का बहाना ढूंढते हैं। हाँ जी। तो मज़ा तो तब है कि पहले अपने आप ही गोल करो। हाँ, पेनल्टी कॉर्नर तो एक एक्सक्यूज़ बन गया गोल लेने का। गोल लेने का। अगर आप टैलेंट हो तो डी में जब पहुंचते हो तो वहाँ 2-3 आदमी होते हैं, बॉल पर कंट्रोल हो तो वहाँ से बॉल जाना चाहिए। और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि बॉल किधर भी देखो बॉल गोल में जाए। सर, डिड यू बिलीव इन फर्स्ट टाइम हिटिंग और डिड यू बिलीव इन ड्रिबलिंग क्लोज टू द गोल? फर्स्ट टाइम जाए तो ज़्यादा कामयाब, गोलकीपर तैयार नहीं होता। अगर ड्रिबल करके जाओ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल तो इंटरेक्ट ही करते हैं साहब, डायरेक्ट तो गोल होता नहीं। ड्रिबल करके भी वो दूसरे को देते हैं, फिर खाली जगह देख के फिर गोल करते हैं। लेकिन सर आजकल जो गेम चेंज हो गया, इतना फास्ट हो गया है, ये एस्ट्रोटर्फ पर खड़े हुए हैं हम, तो इज इट गुड फॉर इंडिया, बैड फॉर इंडिया एस्ट्रोटर्फ? इंडियन स्टाइल के लिए, ड्रिबलर्स के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पुराने ज़माने में जब ग्राउंड ऊपर नीचे भी होती थी तब भी इतना बॉल कंट्रोल होता था कि और बॉल कंट्रोल हम सीखे कब? पहले यूरोप में हैवी ग्राउंड होती थी तो स्लिपरी, तो हमारे इंडिया में जब आए रेडी ग्राउंड है वहाँ पे बॉल कंट्रोल तो अपने आप आता है। बॉल तेज़ चलती है, उसको बॉल को कंट्रोल करना पड़ता है। तो जितनी तेज़ बॉल फास्ट जाएगी उतना बॉल कंट्रोल। हमें इस चीज़ का एडवांटेज था कि हम रेडी ग्राउंड पे खेलते थे। तो फिर बाद में अब तो वो इंडोर ग्राउंड्स बन गई, अब तो परफेक्ट ग्राउंड हो गए, परफेक्ट ऑल वेदर में। आंखें बंद करो बॉल अपने आप स्टिक पे आता है। उस वक्त बॉल रोकना यूज्ड टू बी प्रॉब्लम। बॉल कई बार होता था बाउंस करती थी, बाउंस करते मुंह पे भी आ सकता था। तो उसको बॉल को रोकना और फिर रोक के डॉज करना डिफेंस। इंजरीज भी कम हो गई है अभी, बहुत कम, बहुत फेयर हो गया गेम उस वक्त। फेयर हो गया है सर। दूसरी बात सर, विसल बहुत कम हो गई है, सीटी बजती नहीं अब गेम में आराम से। उस वक्त बहुत विसल, स्टिक की विसल बच गई। स्टिक मतलब बॉल ऊपर उठ गई। तो कंटिन्यूटी के लिए इन्होंने कंटिन्यूटी हो, इसलिए ये रूल्स। स्टिक भी खत्म हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन भी ना के बराबर हो गई, ऑफसाइड खत्म हो गया, फुटबॉल की तरह हो गया, टर्निंग फुटबॉल की तरह नहीं, फुटबॉल तो फिर भी इसके लिए ऑफसाइड है, ओपन हो गई, टर्निंग खत्म हो गई, बहुत सब चीजें खत्म हो गई। वो पाँव को भी मिडफील्ड में लग जाए, हाँ तो एडवांटेज देते हैं। चलो, हाँ जी। बट इज इट अ गुड थिंग फॉर हॉकी और अ बैड थिंग फॉर हॉकी? हॉकी के लिए तो तेज अच्छा है, अच्छा है, क्योंकि हॉकी लोग देखने तब आते हैं कंटिन्यूटी हो, इंटरेस्टिंग गेम हो। अगर विसली बजती रहे तो फिर देखें। बट ये जो लोग कहते हैं कि दिस इज वर्क वेरी बैडली फॉर इंडिया, दैट सब कॉन्टिनेंटल हॉकी हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ इट, डू यू बाय दैट? नहीं, इतना मैं नहीं मानता। अगर टैलेंट है, ग्राउंड अच्छा है, तो भाई जब बॉल मिलता है उस वक्त बीट करने की कहाँ जरूरत पड़ती है? डी के पास आके, हाँ जी, वहाँ तो हर एक डॉज कर सकता है। इन द मिडफील्ड जिधर मर्जी घूम जाओ। तो ये दिस इज एन एक्सक्यूज कि इंडिया पाकिस्तान हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ एस्ट्रोटर्फ एंड न्यू रूल्स? बिल्कुल नहीं, हमें तो फायदा है। हाँ जी, फायदा है कि हमारे बॉल कंट्रोल अच्छा है, हमारा स्टिक वर्क अच्छा है। सॉरी सर। और उसकी ज़रूरत पड़ती है डी के पास आके, हाँ जी, बजाय इधर डॉज करने के। हाँ। मेन इम्पोर्टेंट ये एरिया है, हाँ, यहाँ आके जो डॉज कर सकता है वो असली डॉज है। वहाँ तो सभी कर लेंगे। हाँ, वो तो ड्रामा है, गैलरी शो। हाँ जी। बाहर से लोग दाढ़ी मारते हैं, हाँ, और वो हमें ख़राब करते हैं। हाँ। हम गैलरी शो करते हैं ना, हाँ जी, जो हमें बहुत इसका नुकसान होता है, लेकिन असली काम तो ये है। सर, लोग आपको ध्यानचंद से कंपेयर करते हैं। ध्यानचंद मेरे रोल मॉडल थे। अच्छा, वो आप मैंने पढ़ा है, आपकी जो ऑटोबायोग्राफी भी है जी, गोल्डन हैट्रिक जी, उस पर मैंने लिखा भी है। जब वो छपी तब हम यही छोटे मोटे रिपोर्टर होते थे। आपकी जरा नवाज़ी है। 1976 की बात है वो। मेरे रोल मॉडल थे। हाँ जी। मैं उनकी, मुझसे 20 साल ज़्यादा थे एज में। मैं उनको बड़े पाँच होता था उनके, और बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही नेक आदमी, यानी कोई उनमें अकड़ बिल्कुल नहीं थी। उनसे मैंने बड़ी बातें सीखी, उनसी अच्छी बातें, अच्छा बनने के, इंटेग्रिटी, ये चीज़ें से, यानी शराफत की, बहुत अच्छे उनसे सीखा। बाकी जो उनके ट्रिक थे वो भी उनको कॉपी किया। हाँ। कॉपी करके फिर उनके ऊपर वही के जब कंपटीशन में हो, फिर आदमी होता है कि मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ,
तो उनके ऊपर जाके फिर कोशिश की कि अच्छा, जब मैं गोलकीपर खेलता था सर, हाँ जी। उस वक्त वो सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, तो मैं कभी ख्याल आता था, कभी मैं भी ये बन सकता हूँ। हाँ, मन में ख्याल, मन में ख्याल। वो मन में ख्याल लेके क्योंकि हॉकी में तो सेंटर फॉरवर्ड ही होता है ना, एक वहाँ जो फाइटर पायलट मेन होता है। पायलट मैन हेड, जिसका स्पीड हेड, हाँ जी। अगर जिस टीम का वो अच्छा है, हाँ। अगर दोनों तरफ से पास आता है, इधर से आता है तब भी इधर जाए, हाँ, अंदर जाए, तो स्पीयर हेड तो वही होता है। स्पीड हेड वही होता है, और वो अच्छा है और उसके बड़े फ़ायदे हैं, दोनों तरफ से आता है। अगर उसके पास गोल करने का आर्ट है, हाँ जी। गोल कर स्पीयर हेड सेंटर फॉरवर्ड है और पिवट सेंटर हाफ है। सेंटर हाफ, ये मेन हॉकी के है मतलब सूल। तो उसमें मैं ध्यानचंद जी की बड़ी इज्जत करता हमेशा, और उनसे मैंने बड़ी बातें सीखी भी। ध्यानचंद जी का मैंने सुना है जी, उनका एक बार हॉकी स्टिक तोड़ के देखी थी, उसके अंदर कोई मैग्नेट है, कोई जादू लगा हुआ है ये कि बॉल चिपकती है। मुझे भी अब कहने लग गए हैं, कि आपकी भी तोड़ के देखी थी। कहते हैं, हाँ। लेकिन ये बनी हुई बातें बनी हुई हैं, बातें हैं, sorry हाँ to say, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए जो हाँ, मर्जी बोल दो, कहानी बना लेकिन कोई किसी के पास देखने का, कहते हिटलर जी ने उनको कहा था कि कैप्टन का रैंक दे दो, हिटलर तो गोली मारने को तैयार होता है जिससे वो हार जाए। हाँ बिल्कुल। ये सब बातें, कहानियाँ जब आप बनाते ना हम, तो बच जाती है। धार्मिक में भी ऐसी बड़ी कहानियाँ बना लेते हैं। हाँ जी। हम हमारे सिखों में होता है सुपरस्टिशन, बाहर कहते हैं वो करते थे, मैं कहता तो बिल्कुल नहीं, कोई सुपरस्टिशन नहीं है, हाँ, सिखिज्म तो सुपरस्टिशन के खिलाफ बना है सारा। खिलाफ है सारा। हाँ। तो बाहर जाके वो अभी चलाते हैं। हाँ। तो मैं जब कहीं मुझे बोलने को कहते हैं भाई ये गलत बात है, वो सब कहते थे वो अच्छे इंसान अच्छे थे, इंसान बनो, इसलिए हम उनको पूछते हैं। ये नहीं कि उनके पास जादू था, नो, वो खुद तो मानते नहीं। अभी तो कई कहानियां आपके साथ, एक और आपका टीममेट था ओलंपिक में, टीममेट मलिका सिंह, उसके बारे में बन गई हैं। बड़ी कहानियाँ बनती हैं, जितनी मतलब पिक्चर बनानी है जितनी मर्जी कहानियाँ हाँ बना जी। लो, लेकिन जब आर्ट, क्या कहते हैं, ट्रूथ इज ग्रेटर स्टिल इज ट्रूथफुल, हाँ जी। जो एक्चुअल करना है ना, एक्चुअल, वो मेन। सर, आपको मिल्खा सिंह की, आपको भी कोई कहानी याद है? आप मेलबर्न साथ गए थे। मुझे बहुत याद है, पर मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता सर। थोड़ी तो कुछ बताइए। कोई एक बात। नाम बताऊँ तो अच्छी नहीं जी, बता दे, ऐसी क्या बात है। अब तो इतना टाइम निकल गया। बोल दूँ, अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, बोल दे, 56 साल हो अगर गए। आपने काटना हो तो काट देना। हाँ हाँ, मुझे बता दें। हाँ। गाड़ी पे बैठे थे तो कैपेसिटी लिखा होता है ना, हाँ जी। स्टेशन से पहुँच के कैपेसिटी इतने गैलन, हाँ। तो वो सारी नाम बोलूँ सर? नहीं, बता दे सर। तो क्या बोले वो? अपनी वाइफ को बोलते, निमित जागो, ये तो कोई दिल्ली तो निकल गया, ये तो कोई कैपेसिटी आ गया, जल्दी हम तो आगे निकल गए। सॉरी सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, he will not mind it, he is very happy to laugh। वो मेरे कोलीग थे। हाँ जी। और बहुत मतलब अपने ज़्यादा, क्योंकि काम वाम तो ऐसा ही, लेकिन अपना जो अब सारा आर्ट था बाहर गोल्फ खेलने में लगाते थे या ऐसे पिक्चरों में। मैं फंस गया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हॉकी खिंचाने में, हॉकी सिखाने में। मैंने फंस गया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आगे से। अगर पुलिस में रहता तो मेरे लाइफ और अच्छा होता। हाँ जी। तो मैं एक मुहावरा सुनाया करता हूँ, अगर आप कहें सुना दूँ, काटना काट देना। मेरे मामा जी, बड़े 2 मामा थे, और बड़े मामा जी जब पुलिस से मैं स्पोर्ट्स में आ गया, वो मुझे कहते हो मुंडिया, ये तो बड़ी गलती की थी। मैं कह जी की है? कहते मैं कुछ आखा देनू, गुस्सा तो नहीं। मैं कह जी मामा जी तो जो मर चको। कहते एक जट दी अकल गई, एक जट दी अकल गई। मझ बेच के घोड़ी ली, दुध पीनो गया, केक खानो गया, लिद सुटनी पई। और तू खेडा के डिपार्टमेंट की लगा? I'll have to translate it, because one jat lost his head, he sold his buffalo and bought a mare. So instead of getting milk to drink and ghee to eat, he ended up clearing horse refuse. बिल्कुल right? वो भी बिल्कुल। And meaning being कि why are you leaving a good police job and spending your time playing hockey? तरक्की करता हुआ ऊपर जा सकता था। वहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऐसा फंसा 21 साल, वो ही स्पोर्ट्स में हेड ही रहा, कहीं ऊपर नहीं गया, फंस गया वहाँ पे ना। पुलिस वाले भी नाराज़, जब छोड़ के आया था पुलिस वाले नाराज़ थे।
वो जो एल फ्लेचर थे ना, हाँ जी। उस वक्त के सीनियर मोस्ट ICS ICS ऑफिसर, हाँ जी। उनके सामने कोई बोलता नहीं था। हाँ जी। तो वो उनके कमिश्नर भी उनके घर जाने से डरते थे, तो मैं निर्धारक चला जाता था। इतनी इज्जत करते थे कि भाई मैं तेरे आर्ट की इज्जत, हॉकी की इज्जत करता हूँ तेरी। तो ये सारी सर ये बातें पंजाब का देखें, आपके जो टाइम के जो ओलंपियंस थे, मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, एक और आई वुड से इक्वली ग्रेट इंडियन एथलीट रंधावा, रंधावा, गुरबचन। गुरबचन रंधावा, हाँ वो 5वें नंबर पे आया। हाँ। और उसका इवेंट कितना टेक्निकल कितना टेक्निकल, टेक्निकल मतलब है। हाँ, उसने कहा था एक डिकैथलॉन, बार, कब तक उसका रिकॉर्ड। उसको बिल्कुल, यानी लेकिन ये पंजाब, बहुत ही टैलेंट, उसके फादर भी बहुत हाँ टैलेंट जी थे। हाँ जी। सर जो पंजाब का जो टैलेंट था ये कहाँ गया, क्या हो गया अ, पंजाब को? आजकल शेखर साहब, ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स, वेरी सैड, रुइन कर देते कैरियर को। जहाँ ड्रग्स आ गए, ख़त्म हो गया। हमारे पहले ज़माने में होता था, जिससे दुश्मनी लेनी हो, हाँ। उसके बच्चों को अफीम फीम खिला दो। हाँ, ख़त्म हो गए, अंग्रेजों ने चीनियों को खिलाया ना ऐसे, ये अफीम। बिल्कुल सुला दिया। हाँ, सुला दिया। तो जो जिससे बदला लेना हो, उसके बच्चों को अमल शुरू करा दो। हाँ। अफीम का अमल, अमल पंजाबी में कहते हैं जी कि एडिक्शन। एडिक्शन, और वो एडिक्शन ऐसी है, पंजाब में तो गांव में कोई इफ देयर इज एन एडिक्ट ही इज कॉल्ड एन अमली। पूछो ना कि एक बार ही शुरू करा दो। हाँ जी। हमारे साथ के ख़ानदान, जिनमें हमारी फैमिली में से सबसे जो रिच थे ना, उनको किसी ने ये ड्रग शुरू कर दिया, फीम की, आई सी। बिल्कुल तबाह हो बट यू थिंक दैट इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पंजाब्स डिक्लाइन इन स्पोर्ट्स? ड्रग्स। ड्रग्स, ड्रग्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशूज़ ये है ड्रग्स। पंजाब। अगर ड्रग्स को कंट्रोल किया जाए, अब भी पंजाब में अच्छे पैदा हो सकते हैं, लेकिन ड्रग्स हमें मार रहे हैं। सर आपने तो, सबसे अच्छी बात यह है कि जो, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव इंसान हैं कि आप कंप्लेन नहीं करते। जैसे सब कहते हैं जी एस्ट्रो टर्फ आ गई, अंग्रेज़ों ने रूल चेंज कर दिए, इंडिया पाकिस्तान क्या करेंगे। आपने तो एस्ट्रो टर्फ के ऊपर वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को बिल्कुल 75 में, तो उसकी कहानी बताएं ज़रा, वो क्योंकि वो तो मॉडर्न हॉकी थी। वर्ल्ड कप में जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में लगा, हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में। पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BL गुप्ता होते हाँ जी, थे। हम आप पढ़ते थे जी। अच्छा, आप उसको पढ़ते थे? हाँ जी। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में डॉक्टर BL गुप्ता ने हाँ जी। हमें इतनी फैसिलिटीज़ पर दूर आ जाए। हाँ जी। दी। सर्दी के मौसम में भीगने का फ़ायदा नहीं है। सर्दी आपके, हम बारिश में, बॉम्बे में भी बारिश में भी खेलते थे प्रैक्टिस करके। तो बॉम्बे में जब ट्रेनिंग कैंप हाँ जी। होता था ना, तो बारिश में खेलते थे। लेकिन वो वर्ल्ड कप की बात कह रहे थे। हाँ जी हाँ जी। वर्ल्ड कप 75 में आप जब चीफ कोच और मैनेजर थे। चीफ कोच और मैनेजर, और मुझे याद है कि मेरे फादर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज ऑफ द कैंप ही पास्ड अवे। तो मैंने उनको क्रिमेशन के लिए एक दिन की माफ़ी मांगी। उसके बाद मैंने जो उनका लास्ट राइट्स होते ना, वर्ल्ड कप जीतने के बाद आके, हाँ, आप देखिए। फिर मैंने, पर सर ये उस टाइम जो आपकी टीम बनाई थी, वो 75 के बाद इतनी ग्रेट इंडियन टीम नहीं बनी। आप देखें कि जी आपने जो दो फुल बैक हमारे थे, माइकल किंडो और सुरजीत सिंह, वैसे फुल बैक नहीं हुए, इतने कूल थे दोनों, बहुत, है ना जी। उसके बाद आप देखें अजीत पाल सिंह सेंटर हाफ, आज तक उसके मुकाबले का कैप्टन भी था, उसके मुकाबले का सेंटर हाफ नहीं हुआ, है ना। और आपकी फ्रंट लाइन देखें, गोविंदा, गणेश, पवार, फिलिप, चिमनी, अशोक कुमार, चिमनी, चिमनी, ये सब उस वक्त के टॉप टॉप क्लास। सर अगर मैं चाहता, क्योंकि मैं हाल था चीफ कोच, डायरेक्टर, एवरीथिंग, डायरेक्टर ऑफ द कैंप, हाँ जी, मैं सारे पंजाबी रख लेता। हाँ जी, आई कुड हैव टेकन, सारे सरदार रख लेता। हाँ जी। कंट्री फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। कंट्री में हिंदू भी है, सिख भी है। और आई बिलीव आपने सबको बोला ये फौज की तरह हो जाओ, लाइक एन आर्मी और रेजिमेंट। मैंने एक कॉमन प्रेयर रूम बनाया हुआ था। हाँ जी। मेरी पंजाब पुलिस में भी यही था, कॉमन प्रेयर रूम। उसमें सबको कहना अपने अपने रिलीजन के जो अपने रख रहे ना, आपके हैं जो गुरु या जो भी, वो रख लो। कॉमन प्रेयर रूम होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, सबका कॉमन। वहाँ पे हम प्रे करेंगे और वहाँ से ही सब दुआ लेके चलेंगे। और मैंने फिर बनाया था एक कि जैसे होता ना बोले सो निहाल वाला। हाँ जी। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बोले सो भय, भारत माता की जय। अच्छा, जो बोले सो अब है, भय, हाँ, जो बोले सो है, भारत माता की जय। हाँ। नया शुरू करा दिया, जब टीम ने जाना खेलने के लिए, जो बोले सो है, भारत माता की जय। हाँ। गूंजती है, बस गूंजती जा रही है। जब ग्राउंड में जाना तो टीम ने
ऐसे खेलना। हाँ। तो फिर हमें कैंप में, क्योंकि अगर बोले सो निहाल करेंगे तो लगेगा कि ये पंजाबी एक तरफ है बाकी एक तरफ अगर है। मैंने कहा अगर मैंने वो शुरू कर दिया हाँ। तो उसमें आ जाएगा कि मैं सरदार हूँ। हाँ। तो इसने कर दिया बोले सो अल्लाह, जो बोले सो है, भारत माता की जय, नई चीज़ बना दी। हाँ। तो लोगों बच्चों को भी अच्छी लगी। और उसमें मेरी वाइफ सर उस वक्त बीमार हो गई थी, स्टेट ऑफ कोमा, हाँ जी, I heard that, पीजीआई में। हाँ जी। थैंक्स टू डॉक्टर चुटानी, उन्होंने बड़ा ये केयर अच्छी करके, डॉक्टर राजेंद्र काला, हाँ जी, वो डायरेक्टर थे उस टाइम, डॉक्टर चुटानी, मुझे याद है। उनके साथ हमारे साथ लगा दिए। हाँ जी। और उनके साथ उनका हमको बड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ जी। डॉक्टर भी, वो भी बड़े अच्छे ढिलेदार। बच्चों का ख्याल अकेले अकेले के पास जाके हर एक को पूछना क्या हाल है, मुझे साथ ले जाते। तो मैं रात को, क्योंकि मैं टीमों के साथ रहा था, मुझे पता लड़के रात को निकल जाते हैं, हाँ जी। मुझे पता था। हाँ। तो उनको किस तरह कंट्रोल करना है, तो मैंने जिस होटल में हम ठहरे थे, फिर हमें एक विंग दे दो, एक विंग, कोई एक विंग दे दो। उस विंग में मैं खड़े सारी टीम को सुला के कुर्सी, अपनी आराम कुर्सी जो विंग का एंट्रेंस होता वहाँ पर, कि कोई बाहर नहीं जाएगा। और सर ये बताएं, उसमें जो सबसे रिमार्केबल चीज़ हुई थी कि आपके इतने ज़बरदस्त दो डिफेंडर थे। इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफेंस था, सुरजीत, और दोनों तो किले थे एक तरह के, फोर्ट्रेस, माइकल किंडो, और बिल्कुल कूल, परफेक्ट रिकवरी। वो मैच हमने देखा है सर टीवी में, बहुत ही यानी। लेकिन फिर भी आप फाइनल में आप असलम को लेके आए और उसने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया। वो कहानी बता, असलम शेर खान को। असलम को इसलिए लाया था कि कहीं किंदो, कहीं हाँ, पाकिस्तान वाले गाली वगैरह भी देते हैं ना, गाली देते हैं। हाँ, डर ना कहीं जाए, डरने वाला था नहीं। फिर भी मैंने कहा अगर असलम को नहीं खिलाया तो वो समझेगा मुझे शायद मुसलमान इसलिए नहीं खिलाया। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने कहा क्योंकि सर यही इनामुर रहमान के साथ हो चुका था पहले, उसको हम सस्पिशियस थे उसके बारे में। बिल्कुल। और फाइनेस्ट फॉरवर्ड था वो, उसको नहीं खिलाते थे। उसको कहीं खिलाया नहीं खिलाया। तो मैंने कहा अगर मैंने इसको नहीं खिलाया तो बड़ी ख़राब बात होगी, असलम आना चाहिए। तो असलम को लेके मैं नमाज़ पढ़ने गया कोलालमपुर में। कोलालमपुर। हाँ जी। असलम को लेके रॉयल मॉस्क में डॉक्टर काला और गुरचरण कोच, हम गए तीनों नमाज पढ़ने। नमाज़ पढ़ने। तो नमाज पढ़ने आती तो नहीं, देखे तो हैं। हाँ। तो वो उनको असलम को तो तुम नमाज़ पढ़ो, हम पिछली लाइन में, मैं डॉक्टर काला और गुरचरण कोच, हम पीछे जाके बैठ गए। आप भी कोने पर बैठ गए? ऐसे बैठ गए। हाँ जी। बैठे रहे। जब नमाज ख़त्म हुई तो काजी उनके बाहर आए, कहते बीइंग ए सिख यू आर हियर। तो मैंने क्या कहा, गुरु नानक सिख, अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देयर इज़ वन गॉड, दैट गॉड इज़ एवरीवेयर। वो आगे से कहते अल्लाह मियाँ आपको कामयाबी बख्शे। पीछे खड़ी थी पाकिस्तान की टीम सेम मस्जिद में, इसी काम के लिए, उसी जगह वो भी गए हुए थे। हाँ जी। वो कहते जब हार गए, मुझसे दोस्त थे मेरे, हाँ जी, हाँ जी। वो कहते जो हम मांगने गए थे आपने पहले मांग लिया। मैंने कहा वो देने वाला तो वो है, हम तो कोशिश करने वाले हैं, वो देने वाला है। जब जीत के मेरी वाइफ हॉस्पिटल से वापस आई तो उनको हॉस्पिटल से ले आए, तो ला के मैंने उनके पास, कहते ट्रॉफ़ी कहाँ है, मैंने ट्रॉफ़ी उनके पास रखी, शायद घर पे देखी हो, उनके साथ मेरी फ़ोटो है उस ट्रॉफ़ी के साथ। बहुत खुश हुए थे, कहते आज आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे तो हस्बैंड। सर उस टीम के बारे में कुछ बताइए, वो आपकी फेवरेट टीम है। अजीत पाल तो अभी भी हम देखते हैं, इधर उधर दिखते हैं हमको। अजीत पाल कैप्टन थे और बहुत अच्छा खेले उसमें। हाँ, ही मैरिड इंडियाज ग्रेटेस्ट वुमेन बास्केटबॉल प्लेयर किरण ग्रेवाल। हाँ जी। बास्केटबॉल के प्लेयर। हाँ जी। वो और राइट ऑफ वीरेंद्र थे। हाँ जी। रेलवेज के। हाँ जी। लेफ्ट ऑफ महेंद्र मुंशी थे। हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे। हाँ जी। महेंद्र मुंशी। फिलिप्स राइट आउट थे। हाँ। तो राइट इन थे अशोक। हाँ। सेंटर अशोक कुमार ध्यानचंद सन। ध्यानचंद सन। तो मैंने उनको कहा देखो भाई कैरी मत करना, तो ड्रिबल नहीं करना चाहता, ड्रिबल नहीं करना, अगर ड्रिबल करोगे तो फिर बाहर निकाल देंगे, नहीं तो बदनामी होगी दादा की। हाँ, अगर तुम ड्रिबल करोगे, दादा ऐसे ध्यानचंद, दादा की कहेंगे ध्यानचंद का बेटा बहुत कैरी करके खराब कर रहा है, बहुत ड्रिबल करके सेल्फिश है। हाँ जी। वो नहीं करना, खेलना, डॉज करो, पास दो। और उसने पास भी किया, गोल भी किया। हाँ। तो और खुशी हुई। मैंने कहा देखो अब दादा का नाम, और बहुत टफ एंगल से गोल किया था हमने, बहुत अच्छा गोल किया। हाँ जी, क्योंकि वो तो जीरो एंगल से भी करता था। बिल्कुल।
तो वो बच्चों को जोश दिलाना सबसे बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे जब जाना था तो पूछा उन्होंने मिसेस हम I think you are too well dressed for a shower now. हाँ जी, मिसेस गांधी ने हाँ जी, आ जाइए आपका हाँ जी, कपड़े दिख जाए हाँ जी, कि बलबीर सिंह से पूछो कि टीम ठीक है हाँ जी, जाएगी। हाँ, तो मैंने कहा जी टीम ठीक है जाएगी। पॉलिटिक्स थी हॉकी में, रामा स्वामी वहाँ गए हुए हाँ थे जी, और दूसरी तरफ सानी साहब थे कि किसी पॉलिटिक्स में हिस्सा तो नहीं लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे टीम को। हाँ। मैंने कहा जी हाँ कर लूँगा। तो वहाँ पे मुझे रामा स्वामी जी ने, अब भी कहता हूँ मैंने किताब में भी शायद लिखा है, मुझे बुलाया होटल में, इतना बड़ा बंडल डॉलरों का दिया। उस वक्त था कौन प्रेसिडेंट को किसको हम मानते हैं, हाँ जी। वो मैंने बंडल वो ओल्ड स्टोरी इंडियन हॉकी की अभी भी वही चल रही है, IHF और हॉकी इंडिया आज भी वही है। मैंने बड़ी बदकिस्मती है कि दो ग्रुप बने हुए हैं सर। अगर मैंने उनसे दोनों को ऐसे बेनती करता हूँ कि एक हो जाए, हाँ जी, एक होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी। टीम कंट्री एक है, सब कुछ एक है, हॉकी को जिताने के लिए एक हो के करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके लिए मुझे मिन्नतें भी करनी पड़े, दैट आई विल डू, कि एक बन जाओ, एक बन के तैयारी करो ताकि एक दूसरे की तुम्हें हेल्प हो। सर आजकल हॉकी है नहीं, जब यहाँ तो फिर भी कुछ चंडीगढ़ है इसलिए कुछ लड़के नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप देखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स कोटा से हॉकी निकाल दी है अभी। बहुत अफसोस की बात है। हम तो जब पंजाब में पढ़ते थे स्कूल में तो हॉकी स्टिक ले जानी ज़रूरी थी स्कूल में, खेलनी आए ना आए, बिल्कुल अगर ठीक हॉकी है। स्टिक नहीं आई तो फिर आपका वेपन ऑफ ऑफेंस डिफेंस। मैंने यहाँ से चंडीगढ़ से एक बार अमृतसर गए, हाँ जी, किसी ने आना था बॉर्डर पे लेने, किसी के पास हॉकी स्टिक, बच्चों ग्राउंड है, सड़कें इधर उधर, किसी के पास हॉकी नहीं देखी, वो ईंटें रखी हुई क्रिकेट क्रिकेट। तो क्रिकेट जीतनी चाहिए, आनी चाहिए क्रिकेट, अच्छी बात है, वो हमारी गेम है, हमारे प्लेयर हैं, जीतते हैं बहुत खुशी होती है। पर हॉकी में हारना वो हमारे लिए थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हॉकी में हारना बड़ी आपको दिल की चोट लगती है। चोट अंदर। सर आपने कभी सोचा, ये जब एक चल रहा है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया, कि किसी और गेम में ध्यानचंद को या आपको होना चाहिए था, क्योंकि जो भी हो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, दुनिया में कितने लोग होंगे? जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह ने वही कहा, हमारा काम है टू एक्ट और रिजल्ट लेना उसके हाथ में है। रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है। जो हमारा तो काम था वो हमने कर दिया, खेल भी दिखा दिया, हाँ जी, 3 गोल्ड मेडल भी जीत लिए, 3 गोल्ड मेडल, 2 एशियन गेम सिल्वर एशियन मेडल्स गेम, और उसके बाद एक वर्ल्ड कप एज वर्ल्ड चीफ कप भी कोच जिता दिया मैनेजर। और एक इंटरनेशनल अहमदाबाद हुआ था, हाँ जी, वो भी गोल्ड मेडल जिता दिया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 गोल इन 5 ओलंपिक गोल फाइनल, अभी तक टूटे नहीं हैं और शायद टूटे भी ना। टूटे बिना ओलंपिक में, एंटायर ओलंपिक की हिस्ट्री में ये लॉन्गेस्ट इन एक्शन जो कि रिकॉर्ड है, बीट नहीं हुआ। हाँ जी सबसे लॉन्गेस्ट ये। सर, जो आज की हॉकी आप देखते हैं, अब तो हम डी में आ गए आपका, क्योंकि आपका फेमिलियर रास्ता है, आप हमेशा दूसरी साइड की डी में ही पहुंचते थे बॉल लेके। तो आजकल जो गोल होते हैं ये ड्रैग फ्लिक शुरू हो गई है, पेनल्टी कॉर्नर, ये अच्छी बात है और इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्योंकि आपके टाइम में ये नहीं थी। नहीं थी, हमारे पहले पेनल्टी आपके टाइम में तो स्टिक्स भी थी, स्टिक भी हाँ, थी, स्टिक भी थी, हाँ, बहुत चीज़ें और थी, अंडर कटिंग के ऊपर बहुत हाँ, स्टिक थे। हाँ जी, और लॉन्ग कि बॉल कॉर्नर उठे भी ना। थी। और मैं लॉन्ग कॉर्नर में मेरी स्पेशलिस्ट एक थी, कहना अपने आप तारीफ ले कि लॉन्ग कॉर्नर वहाँ से मार के यहाँ से रोक के अपने हाथ से गोल करना। कुकू वारिया के फादर जो थे ज्ञान से, हाँ जी, वो मेरी मिसाल दिया करते थे कि एक ही आदमी था जो लॉन्ग कॉर्नर की बॉल अपने आप रोकनी और हिट मारना। ज्ञान सिंह जो कोच थे। और 10 हाँ जी, हाँ जी, हाँ हुई, जी। और 10 में से 8 गोल करना। हाँ जी। प्रैक्टिस की सर, प्रैक्टिस। लेकिन सर ये जो अभी जो ड्रैग फ्लिक है, अब तो वो इतना दूर से ला के वो बॉल इतना चढ़ा के इतना मोमेंटम से जाती है, थोड़ा अनफेयर लगता है। उसमें आर्ट जो है, हॉकी का आर्ट जो था वो तो हट गया, हाँ जी, हट गया, वो फोर्स रह गई, तो वो काफ़ी
अनफेयर जो एक तो गोलकीपर के मुंह पे लगा होता है, हाँ जी। अगर दूसरे के मुंह पे लग जाए तो दांत वगैरह सब निकल हाँ जाए। जी, ये 200 किलोमीटर से ऊपर बॉल जा रही है ये। वेरी डेंजरस, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट 1.5 times एज फास्ट एज बहुत फास्ट, मिचेल जॉनसन बॉलिंग एट हिज फास्टेस्ट बिल्कुल। और विद नो उसका हेलमेट्स। किसी के लग जाए हाँ जी, तो उसलिए या तो सबको पैर मुंह पे पहना दे, हाँ जी। तो या वो ड्रैग फ्लिक जो है उसका कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। आर्ट उसके लिए एक निकला है जो वहाँ से बॉल लेके डॉज करते हैं, हाँ, वो बड़ा अच्छा दैट आर्ट इज है। बेटर। हाँ जी, That's- वहाँ से बॉल देते हैं, हाँ। तो वहाँ से बॉल लेके डॉज करके, हाँ। वो आर्ट है। आर्ट है। गोली को डॉज करो हाँ जी। और फिर गोल करो। तो ये जो आपको डर लगता है लोग ड्रैग फ्लिक मारते हैं कि किसी दिन कोई somebody will die? इतनी डेंजरस है, किसी के मुंह में लग गया हाँ जी, और बॉल इतनी तेज होता है, हाँ जी। तो बड़ा डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए वो उसकी जगह Okay, कोई this ball is actually more dangerous than a cricket ball. गोली की तरह है, गोली की तरह है। हाँ जी। गोली की तरह है। तो सर, हाँ जी। आप इंडियन टीम देखते हैं, टैलेंट देखते हैं, और अभी हॉकी इंडिया लीग भी शुरू हो गया। यू थिंक इट्स गुड फॉर इंडियन हॉकी? इंडियन लीग तो बहुत अच्छी बात अच्छी है, बात है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी है, वैसे पैसे भी मिल रहे हैं प्लेयर्स को थोड़े से। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम उसके अभी घोड़े की लिद साफ नहीं करनी पड़ेगी। मतलब मैंने एक रिवाइवल हॉकी स्कीम बनाई है, अच्छा। मैं आपकी कापी बेटे को कहूँगा हाँ जी। तो आपको भेज दे, उसमें बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने देखना कभी फिर मैं देखूंगा जी। इस्तेमाल करना। तो वो मैं देनी है अभी उनको। मैंने अब पता नहीं यहाँ कहना चाहिए, यहाँ तो कहता हूँ काटना हो काट देना। मिनिस्टर साहब को बड़ी कोशिश की है मिलने की, अच्छा, बड़ी कोशिश की है, उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दी। अच्छा। अभी हो सकता है कि वो सुन रहे हो, और वैसे मैं उनको अभी थोड़ा कह भी देना, धमकाऊंगा भी कि जाके प्यार से। मैं तो भाई वो ठीक है, वो रॉयल हैं, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूँ। सर, आपसे बड़ा रॉयल कौन हो सकता है? नवाब भोपाल के पास भी गया तो एक बारी जब बन गई ना स्टेट मर्ज हो गई। सर, सारी दुनिया में कोई नहीं है। तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, वन वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट हैज लास्टेड 60 World years, record. 61 years नाउ, राइट? इनफैक्ट अब तो अगला ओलंपिक भी 2016 में ही है। अब तो आप क्या बात करते हैं? आप तो सबसे बड़े रॉयल हैं। आपने बना दिया रॉयल, तो आपने रॉयल बना नहीं सर, दिया। आपकी वजह से हम सब आपने रॉयल बना दिया। फकर रखते हैं। तो आपको तो देखे ना यहाँ पे ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट, कोई कितने बना ले, 20,000 रन बना ले क्रिकेट में, जो मर्जी बना ले। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी, हमारी भी है जी, सबकी सबकी हमारी हमारी शेयर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है। और ये इंडिया की प्रॉपर्टी इंडिया में की property कल है। कहीं गया था ना फंक्शन पे, फिर मेरी तारीफ मत करो, उनकी इंडिया की तारीफ करो। हाँ। सर, आपका भी मैं देखता हूँ कि दिल में झंडा इंडिया का इंडिया का और दिमाग में हॉकी। बलबीर्स कम बलबीर्स गो, इंडिया स्टेज फॉरएवर। बलबीर्स कम बलबीर्स गो, इंडिया स्टेज फॉरएवर। एंड सर, ये भी बताएं, यू आर, इफ आई मे से सो, 3 years older than Mr. Advani and fitter than Mr. Advani and so positive. ये कैसे? Besides, I know Khalsa spirit helps. खालसा स्पिरिट कह लो, गुड विशेस, वेल विशेस आप जैसे हैं ना, वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। तो अच्छा सोचने, कोई भी अच्छा सोचे किसी के बारे में, ये हमारी साइकोलॉजी में भी है कि उससे जोश आता है, खुशी होती है। आपने मेरे साथ इंटरव्यू की, हाँ जी, मेरी तारीफ भी की, इससे मेरी 5 साल एज और ऊपर बढ़ क्या गई। बात है सर। फिर अगला इंटरव्यू करेंगे आपके 100th बर्थडे पे। बाय दैट टाइम होपफुली इंडिया का कोई मेडल आएगा ओलंपिक मेडल वगैरह में। आना बड़ा ज़रूरी है, हाँ जी। क्योंकि वहाँ मैं गया तो मेरी तो सारी वर्ल्ड वाले तारीफ कर रहे थे। हाँ जी, तो मेरी टीम की मुझसे पूछने लगे पहले दिन कि मैंने कहा पे बात ये है, मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरी टीम गोल्ड जीत जाए, लेकिन मुझे पता है जो मैं उनको देख के आया हूँ इस वक्त तो उस हालत में नहीं जीतने है। के लायक नहीं है। अगर 5वीं 6ठी पोजीशन पे भी आ जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। happy। मैंने ये प्रे किया था। वो बेचारे 5वीं 6ठी पे भी नहीं और चले गए सबसे नीचे, 12वें पे। हाँ जी, और 12वें पे आ गए और गोल मैच भी कोई और नहीं फिर भी जीता। सरदारा सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो गया। और फिर भी यानी, और फिर जो कोच, मुझे फॉरेन कोचेस बहुत अच्छे हैं, हाँ जी, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। पर आप सोचते हैं कि वो ओवर क्वालिफाइड है? मैं यही कहता हूँ कि हमारी अभी स्टैंडर्ड उनसे सीखने का नहीं, वहाँ तक पहुँचो तो सही। हाँ, दे आर ओवर क्वालिफाइड फॉर अस। मुझे पता है सर, आई हैड इंटरव्यूड ऑन वॉक द टॉक रिक चार्ल्सवर्थ हियर,
And I know that he left a frustrated man. And our players were also frustrated with him. बिल्कुल, और वो सारे जितने हैं, इतने कोच बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे यहाँ जो कोच हैं उनको सिखाना चाहिए। हमारे कोचेस को वो फील्ड में जाए, लैंग्वेज प्रॉब्लम उनका, प्लेयर से बात करते हैं तो प्लेयर तो उनकी बोली नहीं समझते हैं, उनसे सीखेंगे क्या? तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अपनी ज़बान में हिंदी सीखो, हिंदी में सिखाओ, उर्दू में सिखाओ, हिंदुस्तानी में सिखाओ, जो प्लेयर समझते हैं उनको बताओ। जिसको ये नहीं पता बोली ये इंग्लिश में कुछ समझा रहे हैं तो वो तो मुश्किल है, मुश्किल है। Sir, our next conversation, either when India wins a medal or when you turn 100, if I am still around, because you will be as fit as ever, God willing. And you have a wonderfully strong and warm handshake, I can see. आप जैसे वेल विशर मिलते जाएं Sir, fan है तो हम। मैंने आई थिंक पॉजिटिव। इस देश में करोड़ों फैन हैं आपके। मैं इस वक्त जो होती है ना हॉकी में आता है कि एक्स्ट्रा टाइम, उसमें आ गया हूँ। उसके बाद आएगा गोल्डन गोल पीरियड। जब गोल्डन गोल आएगा, वो अभी है, अभी तो बहुत टाइम है। उस गोल्डन गोल पे मुझे पता है कि मेरा जो ओपोनेंट है बहुत ऑलमाइटी पावरफुल है, मैं तो जीत नहीं सकता। वो गोल मेरे अपोनेंट ने करना है, उसके लिए जिस दिन वो कर दिया उसने, फिर सर में You have to give him a hug. ठीक है सर, आपको जाने से पहले हिट द बॉल इन द डी। आपने सारी जिंदगी यही किया है तो एक बार और सही, गिर न जाऊँ। एक बार और सही। आपके टाइम में तो कोने में गया, बिल्कुल कोने में में गया, गया। करेक्ट। हाँ, ताकि गोलकीपर को डॉज कर दे। थैंक यू सर, सो वंडरफुल टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू। आई फील सो ब्लेस्ड। You give me a new life. नहीं सर, you've given all us so much respect and so much dignity in India. और for a player, due recognition is very, very powerful tonic for a Sir, the whole world has acknowledged you. powerful. I mean, for International Olympic Committee to say one of the 16 greatest icons of Olympic Games ever across all disciplines, and there's one Indian there, one and only India. Balbir. India. Thank you, sir. Thank you. I'm so privileged.